خبر کی تلاش تک تلاش جاری رہتی ہے، ایک ایسا نیوز چینل جو مسائل صرف دکھاتا ہی نہیں بلکہ اقتدار میں بیٹھے نمائندوں سے عوامی مسائل حل بھی کرواتا ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ آپ بھی ہماری اس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس حوالے سے ہماری ٹیم کا حصہ بنیے۔ تلاش نیوز۔ اس وقت ہم موجود ہیں اب چوکی کے علاقے باوانی کے علاقے میں موجود ہیں، اور ہم آج آئے ہیں، ہمارا یہ ڈیلیگیشن آیا ہے یہاں پر ہماری محترمہ میڈم کی نسرین کی دعوت پر کہ یہاں اس علاقے میں ہم فری میڈیکل کیمپ کا آرگنائز کریں۔ یقیناً ایسے علاقے جہاں ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، ایسے علاقے جو کراچی سے کوسوں دور ہیں، 37 کلومیٹر کا علاقہ ہے کراچی سے یہاں تک، تو ایسے میں ایمرجنسیز کے لیے، اور پھر خدا نخواستہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سانپ بچھو بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور اگر ان کیس اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کی کیس ہو جائیں اسنیک بائٹ کے، تو کراچی تک پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں اس شخص کا کیا ہوگا یا اس بندے کا کیا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ یہاں خصوصاً رات میں اگر کسی خاتون کے ساتھ ڈیلیوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیبر کا کیس ہو جاتا ہے، تو وہ کراچی تک کس طرح سروائیو کرتی ہے یہ رب جانے۔ تو ہم آج آئے ہیں میڈم نسرین کے پاس جو اس سینٹر کو چلاتی ہیں۔ میم پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے اس سینٹر کا نام کیا ہے؟ یہ میرا سینٹر کا یہ کیونکہ یونیسیف سے ہے تو یہ ایل پی محمد بروئی گوٹ میں واقع ہے، اور ایل پی کا اسکول ہے یونیسیف کی طرف سے۔ یہ اسکول 2019 میں ہم نے اس کی ابتدا رکھی تھی، اور یہ تعلیم بالغاں مقصد بڑے بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کیونکہ اسکول نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچے بھی ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس مجموعی تعداد کیا ہے بڑوں کی اور بچوں کی؟ اور اس میں خواتین بھی کیا آتی ہیں آپ کے پاس؟ جو خواتین سلائی کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن پڑھائی کے لیے یہ ہے کہ 15 16 18 وہ جو ہیں بچے اس طریقے سے ہیں، بڑے بچے، اور چھوٹے بچے 350 سے اوپر ہیں، 350 سے ماشاء اللہ ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ مارننگ ایوننگ دونوں کلاسز ہیں؟ صرف مارننگ میں ہے، اور کسی وقت کیا ہے اس کا؟ صبح 8:30 سے 12:30 بجے۔ اور اس میں کیا تعلیم دے رہی ہیں آپ؟ صرف یہ دینی تعلیم بھی ہے یا دینی اور دنیاوی دونوں ہی ہیں؟ اچھا، ہمارے ادارے میں یہ ہے یونیسیف کی طرف سے جو ہے، ہمیں جو بڑے بچے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، جو تعلیم بالغاہ کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، انہیں ہم یہاں پہ سلائی کا ہنر بھی سکھا رہے ہیں، ویکیشنل کی کلاسیں بھی ہو رہی ہیں، اور ادروائز ہم نے اسی طریقے سے لوگوں سے ہیلپ کی مانگی، تو پھر انہوں نے ہمیں ان چھوٹے بچوں کے لیے بکس پرووائڈ کی ہے، اور ان کے لیے ٹیچرز کی سیلری بھی وہ لوگ خود اپنے پاس سے پیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہم 2 میاں بیوی یہاں صرف بچوں کو کر رہے تھے، لیکن اس وقت ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں الحمدللہ 7 سے 8 ٹیچرز اسی علاقے کی ہیں؟ اس علاقے سے بھی ہیں، تھوڑی سی دور سے بھی آ رہی ہیں۔ اچھا، تو وہ کس طرح پہنچتی ہے؟ کوئی کنوینس وغیرہ؟ جی وہ روڈ پہ آتی ہیں، پھر وہاں سے جو کچھ بچے ایسے ہیں جن کا رکشہ لگا ہوا ہے، تو اس رکشے میں وہ بیٹھ کے آ جاتی ہیں، وہ اپنی سیلری میں سے کٹواتی ہیں۔ صحیح، اچھا لانا پڑتا ہے۔ میں ویورز یہاں ہمارے عبدالعزیز بھائی کی خدمات کو سلام پیش کروں گا کہ کراچی میں تھے، ایک گورنمنٹ جاب تھی ان کی، اور یہ جگہ ان کی تھی، اور یہ اجاڑ سی جگہ تھی۔ الحمدللہ آج ایک بڑی جگہ یہ لے کے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ اور عزیز بھائی، کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں اس علاقے میں اس طرح کا سینٹر بننے کے لیے، اور کیسے خیال آیا آپ کو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں آپ شامل ہوں؟ دراصل میرے والدین پہلے بلوچستان کے رہنے والے تھے، باپ دادا پھر سندھ میں چلے گئے۔ ہمارے خاندان میں ایجوکیشن سسٹم تھا، تقریباً ٹیچنگ ہی تھا، والد دادا وغیرہ ٹیچنگ لائن میں تھے۔ میں بھی کراچی میں دیاری میں 21 سال علی ہوٹل کے پاس جونا مسجد میں ٹیچنگ کر چکا ہوں۔ تو مجھے یہاں جو بلوچستان میں جو میں نے دیکھا کہ تعلیم بالکل نہیں ہے، خاص طور لڑکیوں کو تو بالکل نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ لڑکیوں میں تعلیم کا رجحان یہاں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ نہیں دیتے وجہ بتائیے۔ یہ کہ ان کے بڑی تعلیم نہیں دیتے، تعلیم کو ایک مایوس چیز سمجھتے ہیں۔
तालीम के मायूं चीज़ समझते हैं कि लड़कियां जो दुनियावी तालीम हासिल करना, बाकी लड़कों को ये कि कमाई का ज़रिया बनाते हैं, उनको तालीम देना। यहाँ इस गांव में एक भी पढ़ा लिखा नहीं, एक लड़के पूरे गांव में एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो मुझे ये देख के, बच्चों को खेलते हुए देख के मुझे अफसोस हो रहा था। तो मैंने कहा जो तालीम हमें अल्लाह ताला ने खुदा ने दी है, तो मेरे रिटायरमेंट के बाद एक ट्यूशन के तौर पर एक काम करूँगा मैं। तो ये भी पढ़ी लिखी थी, हमारी यही सोच थी। तो अल्लाह ताला ने ये यूनिसेफ से एलपी के थ्रू हमें 9 से 13 साल के बच्चों की इजाज़त मिली। तो अभी वो तकरीबन जब 13 साल के थे वो बड़े हो के उनकी शादियाँ होंगी, कमाने के चले गए, तकरीबन 150 से ऊपर थे। अब 70 बच्चे हैं क्लास 7 के। अब 1 साल के बाद 8 क्लास पास कर लेंगे। 2 साल की उनके वोकेशनल ट्रेनिंग है, 2 साल का डिप्लोमा बाकायदा इनको वो भी मिलेगा। उसके साथ जो छोटे बच्चे एफिलेटेड किससे हैं आप? हाँ, एफिलेटेड किससे? अगर ये आप सर्टिफिकेट देते हैं यूनिसेफ से, कोयटा से हैं, सर्टिफिकेट भी वही देते हैं? वही देते हैं, कमीशन का इम्तिहान देते हैं, कमीशन से सर्टिफिकेट भी कमीशन। सर बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, आपकी दोनों की काविशों को मैं सलाम पेश करता हूँ। पाक आगोश आपकी दोनों को काविशों को सलाम पेश करती है। आज हम आए हैं जमील भाई की क़यादत में यहाँ पर मैडम की दरख्वास्त पर कि यकीनन ऐसे इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स होने चाहिए। लेकिन जमील भाई आप ये बताइए कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे और क्या तरीक़ाकार होगा और कैसे हम इसको लेके आगे मैनेज कर सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम भवानी गोट में मौजूद हैं और अजीज़ साहब और नसीम मैडम के साथ। लेकिन हम इस वक्त मेडिकल कैंप के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से यहाँ आए हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त यहाँ कितने पेशेंट्स होंगे और हम अपने डॉक्टरों की टीम कैसे यहाँ ला सकेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे। ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारी मेडिसिन की मुकम्मल खेप है वो भी हम ला सकें। और मैं अपने तमाम दोस्तों से जो मेरे साथ वॉलंटियर रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस सेंटर के लिए हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करें और बच्चों के लिए कापी किताबें और जो भी मामलात हैं उसमें भी हमारे साथ दें। और ख़ुसूसन मेरे यहाँ जो बलूचिस्तान के दोस्त हैं, यहाँ काफ़ी दोस्त हैं मेरे, उनको भी मैं इनवाइट करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरा उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हमारे जिस दिन मेडिकल कैंप लगे वो ज़रूर आएँ यहाँ पे और उसके बाद इस कैंप के साथ इस सेंटर के साथ ज्वाइनिंग दें और उनके साथ इस गोठ में, इस आबादी में हमारे वो पढ़े लिखे बच्चे जो मामूली जॉबों पे चले जाते हैं, मामूली जगहों में काम करते हैं, वो पढ़ लिख के अच्छी अच्छी जॉबों में जा सकें। अभी मैं इसहाक साहब से भी पूछूंगा, इसहाक साहब इसका जो जोग्राफिया है जो इस वक्त यहाँ इस एरिए का और इसमें कितनी आबादी है, हम अगर जब मेडिकल के लोग लाएंगे तो उसमें कितने लोग यहाँ मेरे मतलब आएंगे, पेशेंट्स कितने होंगे, ख़वातीन कितनी होंगी, बच्चे कितने होंगे और इनमें डिज़ीज़ कितनी है, मतलब इनमें बीमारियाँ क्या हैं, ताकि वो हम उसी हिसाब से यहाँ मेडिसिन ला सकें। जी इसहाक भाई। मैं इसहाक भाई आपसे और ख़ुसूसन मैडम से मेरी ये है कि ज़ाहिर हम जब जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि वो इलाका फैसिलिटेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारा बेसिक मकसद ये है कि इंसान और इंसानियत के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं अपनी बसात पर वो ज़रूर करें। हम जब मेडिकल की टीम लेकर आते हैं तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि इस इलाके के अंदर स्किन के हवाले से मरीज़ हैं या गैस्ट्राइटिस के हवाले से मरीज़ हैं, हेपेटाइटिस के हवाले से मरीज़, ताकि उस हिसाब से फिर हम डॉक्टर्स की कोशिश करें। तो एक तो इस इलाके के बारे में हमें आगाही दें कि यहाँ टोटल आबादी कितनी है यहाँ की और ज़्यादातर अमराज क्या हैं। आप एज ए सोशल वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, आप भी एज ए सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, आप ये देखते होंगे कि यहाँ की मकामी आबादी किन अमराज में ज़्यादातर मुब्तला है, कि इधर कितने अमराज हो रहे हैं और किस बीमारी की वजह से हो रही हैं। सर वो हेपेटाइटिस A, B, C की वजह से ज़्यादा हो। क्या साफ़ पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर? जी हाँ, साफ़ पानी की वजह से, फिल्टर प्लांट नहीं है। जी हाँ, ये इस चीज़ के बहुत शिकायतें आ रही हैं। लग रहे फिल्टर प्लांट। जी हाँ, फिल्टर प्लांट के लिए वो अपना फिर ये एलर्जी भी हैं और मलेरिया एलर्जी पानी की जी पानी की वजह से सब कुछ होते हैं, लेकिन साफ़ पानी नहीं मिल रहा है ना इधर,
तो ये पानी का उसूल कैसा है आपका यहाँ पर, पानी किस तरह वसूल करते हैं? लैन का पानी आ रहा है जो वो अपना उधर डैम का, जी हाँ, हब डैम का पानी आपके घरों के अंदर आ रहा है या आप लेने जा रहे हैं वहाँ? घरों के अंदर आ रहा है। घरों के अंदर जी आ सर, रहा है। लाइन लगी। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये इलाका जहाँ से हम अभी आए हैं, हमने पूरा इलाका देखा है, और अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का लेबर का कोई केस हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ मकामी तौर पे आप मिडवाइफ के ज़रिए वो डिलीवरी का सिस्टम है या फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है? अगर इन केस खुदा न खास्ता वो सर्जरी की तरफ जाता है, समझ गए, अगर सिजरेन की तरफ जाता है, फॉरसेप की तरफ जाता है, जी। तो कराची तक पहुँचते पहुँचते उस खातून का क्या हाल हो जाता होगा? एज ए डॉक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा चंद मिनटों के मामलात होते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो क्या तरीक़ाकार है? और यहाँ कोई लेडी डॉक्टर है? यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि औरतों के लिए वो किया जाए। यहाँ और दवाइयाँ नहीं है। आप अगर लेके जाना चाहती हैं तो आप कराची से इनको लेके जाओ। तो मकसद कहने का ये, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कहने का ये मकसद है डॉक्टर्स के हवाले से, क्योंकि तालीम की कमी है ना, यही कहेंगे ना हम, तालीम की कमी है। और यहाँ अस्सलाम वालेकुम। मैं मैडम नसरीन की बात और अजीज़ भाई असाक भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ, डॉक्टर इस्माइल दुरानी को। मैं अपने दोस्तों से अपील करता हूँ कि इस वक्त हेपेटाइटिस ए और बी की जो वजह है वो वजह है सी की, वो पानी है। पानी तो आता है लेकिन पानी गंदा आता है जो मुख्तलिफ जगहों से होता है, लीकेज से, सेवरेज के इनके लाइनें नहीं हैं जिनकी वजह से ये ABC होता है। तो मेरे अपने दोस्तों से अपील है कि यहाँ एक फ़िल्टर प्लांट की ज़रूरत है। अगर वो फ़िल्टर प्लांट के लिए हमारे साथ ताउन करें तो हम यहाँ लगा दें। और मेरे दोस्तों से भी अपील है कि वो यहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों में एक डिस्पेंसरी कायम करें, और ताकि जो है वो यहाँ के लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। जो यहाँ के कंपाउंडर्स हों, कुछ भी हों, जो भी लोग हैं, उनको हम एज ए ट्रेनिंग दें उस डिस्पेंसरी में। और डॉक्टर्स भी हफ्ते में, महीने में एक डॉक्टर साहब जो हमारे आसपास जो डॉक्टर्स हैं जो नज़दीक तरीन हैं, वो हम इस क्लिनिक में अगर वो हमें टाइम दे सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। विद मेडिसन इंशाअल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे अपने दोस्तों के ज़रिए। सदका जारिया है, ये मुस्तहिक अफराद लोग हैं यहाँ पे। ये अज़ीज़ भाई और मैडम नसीन ने जो मेहनत की है, अल्लाह ताला इनको अजर दे। और हम भी अल्लाह की राह में निकले हैं, इंशाअल्लाह इसमें हम इस इलाके में काम करेंगे।